Today we discuss probability. Today we discuss about the probability. Probability. 11th क्लास में पढ़ा था आपने. उस प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आपके पास आता है एक टर्म आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट. Random experiment. To throw a coin on different situation. To throw a die in the different situation or different time. This is random experiment. Throw a coin in different situation. A coin is thrown, pair of coin is thrown, or 3 coins be thrown, or a coin is tossed 3 times. All are random experiment. Then sample space. Possible number of outcomes. A pair of a coin tossed twice. Then possible outcomes be 4. That is, a coin is tossed head or tail, that is 2 ways. Another coin is tossed by 2 ways. Then possible number of ways m into n ways, that is 2 into 2, that is 4 ways. Then sample space is head, tail, head, tail. This is called sample space. A dice is thrown. A die or dice be thrown. Then possible outcomes 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possible outcomes होंगे आपके पास. एक डाई के 6 फेस होते हैं, 6 faces. Then this is sample space. Then third is event. ये सारा 11th में पढ़ा है आपने. Event, the subset of a sample space. Subset of a sample space is called event. Subset of the sample space. इसका मतलब जो आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा वो सैंपल स्पेस से आएगा, उसको इवेंट कहेंगे. सबसेट. What is sample space? Collection of all possible outcomes. Collection of all possible outcomes is called sample space. And what is event? The subset of a sample space is called event. A coin is tossed twice. Possible outcome is this. Then what is the probability that both faces have contain head? तो आपके पास इवेंट क्या होगा? Both cases at head, तो इवेंट होगा. दोनों थ्रोज के ऊपर हेड हो आपके पास, तो इवेंट हो गया आपके पास. सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट. ये टर्म कॉमनली यूज होंगे आपके पास. इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी में. तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है आपके पास यहां, वो आता है मेरे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होगा आपके पास? इवेंट देगा वो आपको, 2 इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट. देन फर्स्ट इज conditional probability. Let A and B be 2 events. A and B be 2 events associated with a random experiment. Associated with
रैंडम एक्सपेरिमेंट, दो इवेंट्स आपके पास कैन बी एसोसिएटेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of event A under the condition then the probability of occurrence of event A under the condition that another event B has already occurred. B has occurred. Condition that second event has occurred. And the probability of B is not equal to 0. Probability of B is not equal to 0. That is, probability of A we find out when B already given. A oblique B. To find A oblique B का मतलब है to find, this is probability of A intersection B upon probability of B if probability of B is not equal to 0. A की probability फाइंड आउट करनी है, B इवेंट की ऑलरेडी गिवन है. इसका मतलब क्या हुआ, आपको दो इवेंट्स देगा, एक इवेंट गिवन होगा आपको, दूसरा इवेंट होगा जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है उसको इवेंट ए लेट कर लें और जो गिवन है उसको आप बी इवेंट लेट कर लें. उन दोनों इवेंट्स में कुछ कॉमन होगा आपके पास, वो इंटरसेक्शन कहलाएगा. ए इंटरसेक्शन बी कॉमन इन बोथ द इवेंट्स. ए इंटरसेक्शन बी दैट इज कॉमन इन बोथ इवेंट. कॉमन इन बोथ इवेंट, दोनों इवेंट में जो कॉमन होगा वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा आपके पास. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन इवेंट. तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा कॉमन इन बोथ द इवेंट्स. या फिर आपके पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू probability of A intersection B upon probability of A if probability of A is not equal to 0. यहां B की probability फाइंड आउट की है, A ऑलरेडी गिवन है. किसी को भी आप A लेट कर लें, गिवन probability को आप अगर A लेट करते हैं तो फिर फाइंड आउट B करना पड़ेगा आपको, और अगर गिवन probability को आप B लेट करते हैं तो फिर फाइंड आउट करना होगा A आपको. तो यहां इसका मीनिंग मैं लिख देता हूं. Therefore, probability of A B already occurred or B already given, that is to find probability of A when probability of B is given. Probability B is given or already occurred, and probability of B oblique A, that is to find probability of B when probability of A is given, A B given. ये मीनिंग होगा आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर. A and B are two events associated with same random experiment. उसी सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब है मेरा कि एक क्वाइन को टॉस किया हमने, फर्स्ट इवेंट के लिए भी सेकंड इवेंट के लिए भी. उस टॉसिंग ए क्वाइन से ही दोनों इवेंट्स फॉलो कर रहे हैं, द सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ए की आपने फाइंड आउट करनी है अंडर द कंडीशन दैट बी हैज अकर्ड, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ऑलरेडी गिवन. बी हैज अकर्ड का मतलब है कि बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो ये आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी. दिस फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड दिस आल्सो फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. रेस्ट्रिक्शन रहेगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इज ऑलरेडी गिवन लेकिन प्रोबेबिलिटी बी जीरो ना हो, और सेकंड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ए ऑलरेडी गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. दैट इज probability of A to be find out when B is given and probability of B we want to find out when A is already given. This is the definition of a conditional probability of a given event. इसके साथ कुछ टर्म्स आपके पास, उसी को हम फॉलो करेंगे.
देन कुछ रिजल्ट्स हैं जिनका आइडिया आपको होना चाहिए, वो भी मैं साथ साथ लिख देता हूं कि सारे रिजल्ट्स जो हैं पूछे जाएंगे आपसे। नेक्स्ट आपके पास सम रिजल्ट्स बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट आपके पास probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Second है probability of A bar is equal to 1 minus probability of A. Third is probability of A intersection B bar is equal to probability of A minus probability of A intersection B. Fourth is probability of A bar intersection B is equal to probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A bar intersection B bar is equal to probability of A union B bar is equal to 1 minus probability of A union B. This is De Morgan's law. This is De Morgan's law. De Morgan's law 11th क्लास में था। A bar intersection B bar is equal to A union B complement और A bar union B bar is equal to A intersection B complement. They are known as De Morgan's law. The sixth result is probability of A bar union B bar, that is neither A nor B, is equal to probability of A intersection B complement, and this is equal to 1 minus probability of A intersection B. ये रिजल्ट्स आपके पास यूज होंगे। देन probability of A bar B is equal to 1 minus probability of A of B. A complement, not of A. probability of A bar, और इसको हम लिख सकते हैं this is equal to probability of not A, उसको हम P A बार से लिखें is equal to 1 minus probability of the event A. A कोई भी इवेंट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये रिजल्ट्स डी मॉर्गन्स लॉ का रिजल्ट है। ये 11th क्लास में था आपके पास। इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगी और यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टीज है। तो ये भी इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर यूज होंगे रिजल्ट्स, इनका भी आपको फॉलो करना है। ये प्रॉपर्टीज आपके पास डेफिनेशन के साथ यहां से हम फॉलो करेंगे रिजल्ट्स को, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। मैं आता हूं एक्सरसाइज के ऊपर। फर्स्ट एक्सरसाइज है 13.1 ML अग्रवाल की बुक से है। उसी बुक से आपने फॉलो करना है क्योंकि 12th क्लास में हमने वही बुक फॉलो कर रखी है। फर्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.1। उससे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में डाल देता हूं। यह एक्सरसाइज आपके पास एक्सरसाइज है 13.1 बाय ML अग्रवाल, बाय APC ML अग्रवाल। इस बुक की एक्सरसाइज है 13.1। क्वेश्चन नंबर, यहां से क्वेश्चन नंबर लिखा मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ if probability of A is given 1/4, probability of A is equal to 1/4, probability of B, A already occurred, is also given 2/3, probability of A of B is also given 1/2. Then find
probability of B. Then find probability of B. क्वेश्चन नंबर 3 आपका गिवन कंडीशन आपके पास B की probability oblique A is given, probability of A oblique B is given, then probability of A is also given, then find probability of B. We know that probability of B A already occurred is equal to probability of A intersection B upon probability of A. This is given. B oblique A given है मेरे को 2/3, यहां पुट कर दिया हमने 2/3. probability of A intersection B नहीं पता मेरे को, probability of A given है 1/4. ये हो गया 2/3 is equal to 4 probability of A intersection B divided by 1. और यहां से आ गया 2/4 into 3 is equal to probability of A intersection B. ये कैंसिल हो गया. 1/6 is equal to probability of A intersection B. अब मेरे को चाहिए probability of B. क्या क्या गिवन है मेरे को? A intersection B गिवन है, A oblique B गिवन है. Also probability of A B already occurred is equal to probability of A intersection B is upon probability of B. ये रिजल्ट है. probability of A oblique B is given 1/2. probability of A intersection B is given 1/6 upon probability of B. यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा. मेरे पास हो गया 1/2 is equal to 1/6 into probability of B. और ये हो गया आपके पास 6/2 is equal to probability of B. राइट? तो probability of B आपके पास this result is equal to probability of B is equal to 3. B इवेंट की probability चाहिए मेरे को, वो आपके पास रिजल्ट होगा. यहां से कैंसिल करेंगे तो 1/6 आएगा. probability of A intersection B की वैल्यू पुट कर देंगे. 1/6 और probability of B 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास. A oblique B गिवन है, B oblique A गिवन है. वहां से रिजल्ट फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा. वहां से वो कंडीशन होगी. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6. A die is thrown twice. Pair of dice is thrown. Pair of dice be thrown. This implies total number of sample space 6 into 6. First dice contain 6 ways, another die contains 6 ways. Total number of sample space or exhaustive case is 36. सैंपल स्पेस आप लिख सकते हैं. अगर आप लिखना चाहें तो सारे सैंपल स्पेस आप लिख सकते हैं. 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6. इसी तरह 2 1 2 2 2 6. इसी तरह 3 1 3 2 3 6. 4 1 4 2 4 6. 5 1 5 2 5 6. और यहां से 6 1 6 2 और 6 6. ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होंगे आपके पास 36. हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली 6 लाइंस हैं तो 6 into 6 m into n is. A pair of dice is thrown. Sum of the number appearing observed to be 6. This is given. Given है sum of two numbers be 6. This is given.
and what you want to find out, what is the probability, conditional probability that the number 4 has appeared at least once. To find number 4 appeared at least once. जो फाइंड आउट करना उसको ए इवेंट कह दें. देयरफॉर ए इवेंट हो गया आपके पास नंबर 4 appeared at least once. नंबर 4 appeared at least once. तो आपके पास यहां से आ गया 1 4 2 4 3 4 5 4 6 4 appeared once time. इसका रेसिप्रोकल हो गया 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6. उससे वर्ड यूज किया एटलीस्ट, दोनों फेसिस पे भी 4 हो तो हो गया 4 4. ये एटलीस्ट का केस हुआ मेरे पास. नंबर 4 appeared at least once. ये फाइंड आउट करना तो उसको ए इवेंट ले लिया. एंड बी बी द इवेंट टू गेट सम एज 6. 2 4 4 2 1 5 5 1 एंड 3 3. जो गिवन है आपको उसको बी इवेंट ले लिया मैंने. देन सम टू गेट एट 6 2 4 4 2 1 5 5 1 3 3. ये सेकेंड इवेंट हो गया. अब इन दोनों इवेंट्स में कुछ कॉमन है. ए इंटरसेक्शन बी, वो टर्म देखें, वो पेयर देखें जो दोनों में है. 2 4 2 4 4 2 4 2. उसके अलावा कोई पेयर कॉमन नहीं है. तो मेरे पास हो गया कॉमन 2 4 और 4 2. तो यहां से आ गया एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2. तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई यहां से, देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग केस. और वो हो गया आपके पास 2/36. नंबर ऑफ सैंपल स्पेस दिस. व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी चाहिए मेरे को प्रोबेबिलिटी चाहिए ए ऑफ बी. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ऑलरेडी अकर्ड is equal to probability of A intersection B upon probability of B. A intersection B तो आ गया मेरे पास 2/36. probability B और चाहिए, probability of B. probability B के लिए मेरे पास क्या होगा, probability of B is equal to n of B total number of output total number of sample space. number of favorable case n of B 1 2 3 4 5. That is 5/36. दोनों की वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास क्या आएगा, यहां से मेरे पास रिजल्ट आएगा दिस इज इक्वल टू 2/36 डिवाइडेड बाय 5/36. 36 कैंसिल हो गया. ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई किसी भी इवेंट की. ये प्रोबेबिलिटी होगी टू गेट द नंबर 4 appeared at least once. ये आंसर होगा आपके पास, लेस देन 1 आएगी. ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन. पेयर ऑफ डाइस का मतलब 36 आपके पास सैंपल स्पेस होगा एग्जिस्टिव केस, और वहां से आप फॉलो करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. तो जो फाइंड आउट करना है उसको ए इवेंट कहते हैं, जो गिवन है उसको बी इवेंट कहते हैं, और वहां से आप फॉलो करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. दोनों इवेंट्स में कुछ जरूर कॉमन होगा, इसलिए इंटरसेक्शन फॉलो करना पड़ेगा, वहां से रिजल्ट आ जाएगा आपके पास. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9. ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन. ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज. दिस इज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज. ये फाइंड आउट करना है, बोथ आर बॉयज. And given that at least one of them is a boy. At least one of them is a boy. तो सैंपल स्पेस होगा आपके पास, ए फैमिली हैड 2 चिल्ड्रन. 2 सफिक्स ले लें. 1 हो गया आपके पास एल्डर चाइल्ड,
एल्डर चाइल्ड 1 के लिए, और 2 के लिए यूज करेंगे आप यंगेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट चाइल्ड। एल्डर चाइल्ड के लिए 1 यूज करेंगे, यंगेस्ट चाइल्ड के लिए 2 यूज करेंगे। तो सैंपल स्पेस हुआ मेरे पास S, B1 B2 बोथ आर बॉयज, एल्डर यंगर, G1 G2 boy or girl. A family has 2 children, then both are boys, both are girls. Elder is a girl, youngest is a boy, और B1 G2, ये सैंपल स्पेस होगा आपके पास। 1 का मतलब एल्डर चाइल्ड है, 2 का मतलब यंगेस्ट चाइल्ड है। ये सफिक्स मैंने यूज किए हैं। तो जो B1 है इसका मतलब एल्डर चाइल्ड बॉय है, यंगेस्ट बॉय है। एल्डर गर्ल यंगेस्ट गर्ल, एल्डर गर्ल यंगेस्ट बॉय, youngest elder boy, youngest girl. A family has 2 children. What is given? That given that at least one of them is a boy. A be the event. A be event. At least one of them. At least one of them is a boy. और बी इवेंट है दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, एंड गिवन है बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज। देन टू find probability of A, B already occurred, is equal to probability of A intersection B upon probability of B. इंटरसेक्शन दोनों इवेंट्स में जो कॉमन आएगा वो इंटरसेक्शन होगा आपके पास। तो यहां से एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। एट लीस्ट का मतलब है G1 B2, B1 G2 एंड बोथ आर बॉयज, B1 B2। ये पॉसिबल केस है मेरे पास। तो यहां से N ऑफ A हो गया मेरे पास 3, N ऑफ A। देन बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, तो यहां मेरे पास सैंपल स्पेस बना बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज B1 B2। अब इन दोनों इवेंट्स में कॉमन क्या आपके पास? बट A इंटरसेक्शन B, दिस इज B1 B2, दोनों में है B1 B2 B1 B2। तो N ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई आपके पास A इंटरसेक्शन B की? N ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन N ऑफ S, और वो हो गया 1/4। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B? यहां पे पास N ऑफ B कितना होगा? N ऑफ B 1 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगी आपके पास? N ऑफ B अपॉन N ऑफ S। N ऑफ B आपके पास 1 है, N ऑफ S कितना है? 1/4 है, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओब्लिक B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज, दिस इज गिवन, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। तो वहां से आपके पास रिजल्ट आएगा एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। A इंटरसेक्शन B दोनों का कॉमन, वो आपके पास हो गया 1, B1 B2। फाइंड आउट करना है A ओब्लिक B, दैट इज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, 1 बॉय और 2 बॉयज। यहां पुट कर दे आप A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 1/4। नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस आपके पास 4 है, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 4 हो गया आपके पास। तो वहां से आपके पास प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की आ गई, वो आप पुट करेंगे 1/4 डिवाइड बाई 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 1। एट लीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय। इसी के साथ कहता है वो सेकेंड पार्ट इसका, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज ए बॉय, एल्डर चाइल्ड इज ए बॉय। तो यहां पे कह देंगे एल्डर चाइल्ड इज ए बॉय,
event. Elder child is a boy. Elder child is a boy. Elder child is a boy. तो आपके पास क्या केस बनेगा? Elder child is a boy, B1 पहले आएगा और B1 G2. Elder child is a boy. Elder child is a boy. And both children are boys. वो B1 B2 आपके पास. तो यहां से कॉमन क्या हुआ दोनों के पास? दोनों का कॉमन कितना हो गया आपके पास? B1 B2. तो वहां से आ गया आपके पास दिस और 1/4 3/4. तो एल्डर चाइल्ड ऑफ बॉयज का मतलब है B1 फर्स्ट आएगा और B2. एल्डर चाइल्ड, एटलीस्ट स्टेटेड ऑन दैट एल्डर चाइल्ड इज ए बॉय. एल्डर चाइल्ड इज ए बॉयज का मतलब हो गया B1 एल्डर चाइल्ड है, B2 यंगेस्ट चाइल्ड है, B1 एल्डर चाइल्ड है, G2 दैट इज एल्डर चाइल्ड इज ए बॉय. तो वहां B1 B2 और B1 G2 आएगा. उसकी कंडीशन पुट करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, वहां से आपके पास रिजल्ट आएगा. नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 के 3 पार्ट है, 2 हमने बता दिए, एक पार्ट आप खुद सोल्व करेंगे. नेक्स्ट इसी के अंदर 12 cards number 1 to 12 are placed and mixed up thoroughly. Then a card is drawn at random from the box. Then the digits drawn card greater than 5, then it is an odd number. Question number 11 पढ़िए आप. Question number 11. 2 digits are selected at random from the digits 1 to 9. Question number 11. Digits है आपके पास 1 to 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Then the sum is even. This is given. Then find the probability that both digits are odd. Odd digit और इवन डिजिट्स, ये फॉलो कर रहे हैं आप पहले. ऑड डिजिट एंड इवन डिजिट. ऑड डिजिट हो गया आपके पास 1 3 5 7 और 9. इवन हो गया आपके पास 2 4 6 और 8. ऑड डिजिट 5 आपके पास, इवन डिजिट 4 है आपके पास. उसने कहा सम ऑफ नंबर इज गिवन इफ द सम इज इवन, बी इवेंट है. And what is the probability? Then find the probability that both digits are odd. A event. Both digit odd. Both digits odd. Odd digit कितनी है आपके पास? 5. दोनों डिजिट जो सेलेक्ट करें तो आपके पास n of a हो गया 5C2. 2 digits भी सेलेक्ट और चूज तो कॉम्बिनेशन लगेगा आपके पास. 5 और डिजिट्स है, वो डिजिट्स ऑड, दोनों डिजिट ऑड और डिजिट नंबर आपके पास 5 में से 2 सेलेक्ट कर दिया हमने तो आपके पास एन ऑफ ए आ गया. और बी आपके पास बी बी द इवेंट द सम इज इवन. अब सम इवन है तो ऑड डिजिट का सम भी इवन ही होगा. सम ऑफ ऑड डिजिट always be even. Therefore digits होंगे आपके पास, और डिजिट्स 5 हैं प्लस इवन डिजिट्स 4 हैं. इवन डिजिट्स का सम भी इवन होगा और डिजिट्स का सम भी इवन होगा आपके पास. तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एन ऑफ बी, वो होगा आपके पास 5C2 plus 4C2, right? Then to find the probability of A intersection B, दोनों इवेंट्स में कॉमन कितना हुआ? 5C2 यहां भी और 5C2 यहां भी है, तो ये हो गया आपके पास 5C2. दिस विद द कॉमन, दैट इज बोथ डिजिट्स ऑड. ऑड डिजिट, सम ऑफ ऑड डिजिट्स ऑलवेज बी वन, और फर्स्ट गिवन वो डिजिट ऑड, तो कॉमन हो गया 5C2 और 5C2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी 5C2 है
इसको सोल्व कर लें 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये हो गया आपके पास 5 इंटू 4 और ये हो गया 2 इंटू 1, दिस इज 10, 5C2। ए इंटरसेक्शन बी तो 10 आ गया आपके पास। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको सोल्व कर लेते हैं 4C2, ये हो गया 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो हो गया 4 इंटू 3 और ये हो गया 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, तो ये टोटल आ गया आपके पास 10 प्लस 6 दैट इज 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया आपके पास, ये हो गया 10 अपॉन 36, 10 अपॉन टोटल 9, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा आपके पास 9C2, उसको लिख दिया 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, एग्जॉस्टिव केस। तो यहां से कितना आएगा आपके पास 9 इंटू 8 और 2 इंटू 1, ये हो गया 36, तो ये हो गया 10 अपॉन 36 डिवाइडेड बाई 16 अपॉन 36, ये कैंसिल हो गया 36 आपके पास, 10 अपॉन 16 5/8, ये प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास टू गेट बोथ डिजिट्स ऑड। टोटल डिजिट्स आपके पास 1 to 9 है, 1 से 9 डिजिट्स के अंदर गिवन है सम ऑफ द डिजिट इज इवन, तो इवन नंबर के जो डिजिट होंगे उनका सम भी 1 ही होगा और ऑड डिजिट का जो सम होगा वो भी आपके पास ही 1 ही होगा, तो वो टोटल ऑड डिजिट्स आपके पास 5 है, इवन डिजिट्स आपके पास 4 है, तो वो दोनों कंसिडर होंगे वहां पे बी इवेंट्स में। 2 डिजिट सेलेक्ट करनी है, टोटल 9 में से 2 सेलेक्ट करेंगे 9C2, दैट इज सेलेक्ट द 2 डिजिट्स फ्रॉम द गिवन डिजिट्स, तो वहां से आपके पास रिजल्ट आएगा, उस कंडीशन को हम फॉलो कर लेंगे तो वहां से रिजल्ट बन जाएगा आपको। इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इसी पे डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास, 1 card is drawn from a pack of 52 cards. 1 card is drawn out of 52 cards. Then n of s, question number 12. n of s, 1 card is drawn, 52C1 is equal to 52. Total number of exhaustive case है. Is the event the drawn card is a king or queen? Event है drawn card be king or queen, king or queen, ये इवेंट है। एफ इवेंट है द ड्रॉन कार्ड बी क्वीन और एन एस, क्वीन और एन एस। देन find the conditional probability of E of F is equal to probability of E intersection F upon probability of F, ये फाइंड आउट करना है। कार्ड ड्रॉन इज ए किंग, हाउ मेनी किंग 4 किंग, हाउ मेनी क्वीन 4 क्वीन, टोटल कितना हो गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो गया आपके पास 4 किंग प्लस 4 क्वीन डिवाइड बाई 52, तो ये हो गया 8/52, 8/52, ये हुआ आपके पास 4 + 4 दैट इज 8। देन क्वीन और एन एस, क्वीन 4 एस इज 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हुई आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगी 4 + 4/52 दैट इज 8/52। Then the common in both the events, दोनों के अंदर क्वीन है आपके पास, then E intersection F that is queen, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी आज से, प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F is equal to 4/52, नंबर ऑफ क्वीन 4, तो यहां से प्रोबेबिलिटी आ गया आपके पास 4/52 और यहां से प्रोबेबिलिटी आ गया आपके पास 8/52, ये कैंसिल हो गया आपके पास 4/8 दैट इज 1/2, ये प्रोबेबिलिटी हो गया आपके पास 1/2 ऑफ द गिवन इवेंट इन द केस ऑफ
one card is drawn from a pack of 52 cards. E event है the drawn card is a king or queen. F event है the drawn card is a queen or an S. King 4, queen 4, total हो गया 8, 8 upon 52. Then drawn card भी queen or an S. Queen is 4, S is 4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ F होगी 4 + 4 8, 8 में से 1 कार्ड ड्रॉ करेंगे तो 8C1 upon 52C1, तो वहां से 8 upon 52 ही आएगा। और दोनों इवेंट्स में कॉमन क्या है? दोनों इवेंट्स में क्वीन कॉमन है आपके पास, तो 4 क्वीन, 1 कार्ड इज ड्रॉन 4C1 upon 52C1, तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी E ऑफ F, दिस बी द रिजल्ट। ये आपके पास क्वेश्चंस हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। क्वेश्चन नंबर 12 हमने सोल्व किया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, उन सभी में यही कंडीशन दे रखी है। आपने देखना व्हाट इज गिवन एंड व्हाट यू वांट टू प्रूव, उसी के अकॉर्डिंग आप फॉलो करते जाएंगे तो वहां से रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। क्वेश्चन नंबर 14, 15 दोनों एक जैसे हैं। 15 क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 15, 60% स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर, 40% स्टूडेंट्स रीड तमिल न्यूज़पेपर एंड 20% रीड बोथ हिंदी एंड तमिल। ए इवेंट आपके पास the students read Hindi newspaper, B event आपके पास the student read Tamil newspaper, और दोनों का कॉमन है A इंटरसेक्शन B, that is हिंदी एंड तमिल न्यूज़पेपर इंटरसेक्शन। तो यहां आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ A 60/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 20/100, 60% रीड दिस, 40% दिस, 40/100, और द कॉमन A इंटरसेक्शन B, द कॉमन is 20/100। ये गिवन है आपको, तो क्या गिवन है यहां से? दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट सेलेक्टेड रैंडम रीड्स तमिल न्यूज़पेपर, दिस इज गिवन है दिस तमिल न्यूज़पेपर, दिस इज गिवन, देन he has already read, find the probability that a student selected at random read Tamil newspaper given that he has already read Hindi newspaper, given है, this is given, और B find out करना है, ये find out कर रहा है, to be find out, that is probability of B A already occurred, तो वो हो गया आपके पास probability of A intersection B upon probability of A, सबकी probability है आपके पास। A इंटरसेक्शन भी 20/100, 20/100, प्रोबेबिलिटी ऑफ A 60/100, और आपके पास आ गया 20/60, और वो आ गया 1/3। दिस इज B/A रीड दिस न्यूज़पेपर, ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया आपके पास। इसी का सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट था आपके पास, इसी का सेकंड पार्ट है find the probability that a student selected random read Hindi newspaper given that he has already read Tamil newspaper, Hindi newspaper given that he has already Tamil newspaper, Hindi newspaper that the student, अब आपको निकालना है probability of A/B, तो आपके पास क्या होगा? probability of A intersection B upon probability of B। A intersection B आपके पास कॉमन है 20/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना आपके पास 40/100, तो आपके पास क्या आ गया 20/40, एंड दिस इज इक्वल टू 1/2। वो सेकेंड केस है। और थर्ड आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, नाइदर हिंदी नॉर तमिल, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार नाइदर यूनियन B बार, and this is equal to probability of A intersection B complement, and this is equal to 1 minus probability of A intersection B,
and this is equal to 1 minus A intersection B 20 by 100 and this is equal to 80 by 100 and this is equal to 4 by 5. Neither A nor B, neither A nor B वो आपके पास केस होगा, तो वहां से रिजल्ट आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी आपके पास है 20 by 100. नाइदर ए नॉर बी, तो वो रिजल्ट होगा आपके पास. ये कंडीशंस हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की. इसके सारे एग्जांपल कर रहे हैं, कंप्लीट एक्सरसाइज फॉलो करनी है आपने. उसके बाद इसी पे आता है नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, and this be applicable on without replacement. Without replacement. Without replacement. That is probability of AB. This is 2 draws or 2 throws. This is equal to probability of A. Probability of B. A already drawn. Probability of B when A already drawn. This is without replacement. If 3 balls or 3 cards are drawn, A, B, C, first card is drawn, not replaced. Second card is drawn, 1 card is already drawn. Next card is drawn when 2 cards are already drawn. All are without replacement. 3 cards or 3 balls are drawn without replacement. First ball is drawn, then we draw the second ball when we have already drawn this ball, and third drawn when we have 2 draws already follows. And this probability of 4 drawns, A, B, C, D. Then probability of the first event, probability of B, A already drawn, probability of C, 2 drawn, probability of D, 3 drawn. This is the multiplication theorem for without replacement. उस केसेस की कंडीशन को आप फॉलो करेंगे तो आपके पास ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहलाती है. इसका मतलब है विदाउट रिप्लेसमेंट. 2 balls be drawn from a pack of bag which contains 2 red, 3 ball, 2 red ball and 3 blue ball. विदाउट रिप्लेसमेंट है. तो आपने फर्स्ट बॉल निकालने, बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज ब्लू. तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वहां से 2 ड्रॉज होंगे आपके पास. फर्स्ट ड्रॉ पे ब्लू बॉल और सेकंड ड्रॉ पे भी ब्लू बॉल होगी, जबकि एक ब्लू बॉल आप पहले निकाल चुके हैं. तो यहां से जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसमें 1 टोटल के अंदर एक ब्लू बॉल कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी आपके पास. यहां 3 बॉल्स या 3 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, तो सेकंड ड्रॉ के ऊपर जो कार्ड ड्रॉ होगा वो 1 लेस होगा टोटल में. और अगर डिफरेंट कार्ड है तो यहां टोटल में 2 कम हो जाएगा, 2 लेस हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी ड्रॉन. ए सी ऑब्लिक ए बी का मतलब है कि थर्ड कार्ड और थर्ड बॉल इज ड्रॉन व्हेन 2 बॉल और 2 कार्ड्स ऑलरेडी ड्रॉन. और ये 4 कार्ड्स या 4 बॉल्स आर ड्रॉन. फर्स्ट बॉल इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. देन सेकंड बॉल इज ड्रॉन, ए ऑलरेडी ड्रॉन. प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन 2 बॉल्स ऑलरेडी ड्रॉन, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन 3 balls are drawn. This is called multiplication theorem. और ये सिर्फ यूज होगी जब आपके पास क्वेश्चन में लिखा होगा विदाउट रिप्लेसमेंट. विद रिप्लेसमेंट के अंदर इसका यूज नहीं होगा. इसके साथ आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स. देन इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट. 2 events A and B are said to be independent, if probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. If probability of A intersection B is not equal to
probability of A into probability of B, then we say that they are dependent event. Dependent event. इंडिपेंडेंट इवेंट्स में इंटरसेक्शन दोनों इवेंट्स में कॉमन होगा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अगर इक्वल होंगे तो ही आपके पास इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज वो डिपेंडेंट इवेंट कहलाएगा आपके पास. और नेक्स्ट आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो इवेंट होगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव. दैट इज नो कॉमन इवेंट. नो कॉमन इन बोथ द इवेंट्स. दोनों इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ऐसे इवेंट को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. ये तीन टर्म इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर यूज होंगी आपके पास. वो आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में आता है 13.2 में, उसको हम डिस्कस करेंगे. मल्टीप्लिकेशन थ्योरम विदाउट रिप्लेसमेंट है. और नेक्स्ट एक्सरसाइज है इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स उस पर फॉलो होगा. इंडिपेंडेंट इवेंट्स की डेफिनेशन हमने लिख दी है. पहले 2 क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछ रखी उसने ऑब्जेक्टिव में. क्वेश्चन नंबर 3 हम बता देते हैं. एक्सरसाइज है 13.2. क्वेश्चन नंबर 3. What is given? Event A and B are such that probability of A is given 1/2, probability of B is given 7/12, and probability of A bar union B bar is equal to 1/4. Then show that not A or not B. Then state they are independent. तो आपको इंडिपेंडेंट के लिए चाहिए इंटरसेक्शन. आपको गिवन है ए बार यूनियन बी बार. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार, इसको आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इसका बार. डी मॉर्गन्स लॉ है. और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और यहां से हो गया माइनस का 3/4 इज इक्वल टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपके पास 3/4. इसको सॉल्व किया तो इफ दे आर इंडिपेंडेंट, इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, this implies that probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Probability of A intersection B 3/4 है, and this is equal to probability of A 1/2 into 7/12. और ये हो गया 3/4 is equal to 7/24 and they are not equal. Therefore, events not independent. They are not independent. They are dependent events. अगर ये इक्वल आता 3/4 is equal to 3/4, then we say that the events are independent. Otherwise, they are known as dependent events. They are known as dependent events. ये कंडीशन आपने फॉलो करनी है. उसी के साथ आप रिजल्ट्स को बताते जाएंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आएगा. जो सेकंड एक्सरसाइज है 13.2, उसी के साथ आप फॉलो करते जाएं. इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप. क्वेश्चन नंबर 6 इंडिपेंडेंट इवेंट से है ये. ए डाइज थ्रोन, सैंपल स्पेस हो गया आपके पास 1 2 3 4 5 6. देन द नंबर appearing is a multiple of 3 is the event. The number appearing is a multiple of 3 event. The number multiple of 3, that is 3 and 6. And the second event, F be the event, the number appearing is even, F. The number is even. Even number हो गया आपके पास 2 4 6. इन दोनों इवेंट्स में कॉमन क्या हुआ? वो हो गया आपके पास 6. Then show that they are independent.
आर दे इंडिपेंडेंट इवेंट्स ई एंड एफ, देन ई एंड एफ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया आपके पास 2/6 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो गया आपके पास 3/6 1/2. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया आपके पास 1/6. Therefore, probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F. E intersection F आपके पास 1/6, probability of E 1/3 और ये हो गया 1/2. तो यहां से हो गया 1/6 is equal to 1/6. This implies that E and F events